السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایک سنگین گناہ گالی اس عنوان کے تحت کچھ باتیں ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے. آج گالی کو یعنی گالی دینا یا گالیاں بولنا، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے آپس میں، اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھا. ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو فخر سمجھتے ہیں. کئی لوگ تو فیشن سمجھتے ہیں. کئی لوگ تو اس کو ایک عادت بنا لیے کہ ہر بات پہ ایک گالی ہی گالی نکلتی ہے، زبان کھولے کی گالی ہی ہوتی ہے. کچھ لوگ تو اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ مذاق میں بھی گالیاں دے دیتے ہیں. آپس میں قریبی دوست جو ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تاکہ اس کو ایک مذاق سمجھتے ہوئے، حالانکہ وہ ایک خاص دوست ہوتا ہے جو اس کی بہن کو گالی دیتا ہے، یہ اس کا خاص دوست ہوتا ہے، وہ اس کی بہن کو گالی دیتا ہے. نہ یہ برا سمجھتا ہے نہ وہ برا سمجھتا ہے، بلکہ حالت ایسی ہے آج کہ ہر جگہ گالیاں سنائی دیتی ہے. کوئی جگہ ایسی نہیں نظر آتی کہ جہاں پر گالی نہ سنائی دیتی ہو. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی گالیاں ہیں. آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں. ساس بہو ہے تو وہ ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں. سگے بھائی بھی ایک دوسرے کو گالیاں دے لیتے ہیں آج. اور اسی طرح کیا ہے، دوست بھی گالیاں دے لیتے ہیں. ہاں، اور ذرا سا ناراضگی ہو گئی کسی معاملے میں تو پھر کوئی بھی گالی سے بچا ہوا نہیں نظر آتا. اگر کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ بھی وہاں پر گالیاں دیتے ہیں. جو خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں یا تو وہ گالی دے کے نکلتے ہیں اس کو، یا نہیں تو جو بیچنے والا ہوتا ہے، جو کاروبار کرنے والا ہوتا ہے، وہ گالی دے دیتا ہے ان لوگوں کو. اسی طرح آٹو ڈرائیور کو دیکھو، اس کی زبان بھی اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ گالیاں دیتا ہے. جس کو دیکھو کوئی ایسا آدمی نہیں نظر آتا جہاں پر گالیاں نہیں، کیونکہ اس کو سمجھے ہی نہیں ہم کہ یہ کوئی گناہ ہے، یعنی اسے گناہ ہی نہیں سمجھے. اس لیے گالی دینا ایک فیشن بن گیا، ایک مذاق بن گیا. یہ تو بس روٹین لائف میں چلتا ہے، بھائی یہ بھی نہیں دیے تو کیسا. اور کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی، گالی دینا ایک فخر کی نشانی ہے. ہاں، گالی دینے سے کیا ہے، ہمارا روب، ہمارا دبدبا ہوتا ہے، سامنے والا ڈرتا ہے گالی دینے سے. یہ سمجھ کے کچھ لوگ جان بوجھ کر گالیاں دیتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. آج ہم لوگ سوچیں گے، آج ہم غور و فکر کریں گے قرآن و سنت میں گالیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، جس پر آج ہمارا کنٹرول نہیں رہا. اور اس پر آج بولنے والے بھی نہیں بول رہے ہیں. اسے کوئی بولتا ہی نہیں. کوئی گالی دیا تو کوئی بولتے کہ آج چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالیاں سیکھ لیتے ہیں، بلکہ بچوں کو سکھاتے ہیں بچپن سے. خود ماں باپ سکھاتے ہیں بچوں کو گالیاں دینا. ہاں، ننیال والے ددیال والوں کو گالیاں دینا سکھاتے ہیں، ددیال والے ننیال والوں کو گالی دینا سکھاتے ہیں. ماں اپنے باپ کو گالی دینا سکھاتی ہے تو باپ اپنی ماں کو گالی دینا سکھاتا ہے. اس کو مذاق سمجھتے ہوئے بچپن سے ہی جب گالیاں دینا اپنے بچوں کو ہم خود سکھائیں، اور اگر بچہ کہیں اسکول سے سیکھ کے آیا، دوستوں سے سیکھ کے آیا، اور بچہ آنکھوں کے سامنے گلی میں اپنے محلے میں کسی پڑوسی کے بچے کو گالی دے رہا تو ماں باپ سن کر بھی خاموش ہوتے ہیں، تو بچہ اس کو جائز سمجھ لیا، اب اس لیے وہ بھی گالی دیتا ہے اور اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے. تو یاد رکھو، آج ایسی گالیاں بول نہیں سکتے. آج ایک شریف انسان اپنی زبان سے وہ گالیاں نکال نہیں سکتا، بلکہ کوئی گالیاں دے رہا تو سن بھی نہیں سکتا. ایسی گندی گالیاں ہوتی ہیں.
माँ बहन की गालियां होती है कि कोई बाजू में बैठ के सुन भी नहीं सकता सफर में। बल्कि अभी रमजान का महीना गुजरा, रमजान के महीने में एक जगह ऐसे ही जाने का मौका हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग मुसलमान ही ज्यादा थे, मर्द हजरात थे। तो वहां पर एक आदमी, जैसा कि रमजान का महीना आया तो हम देखते हैं आमतौर पर मर्द हजरात सर पे टोपी लगा लेते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ने की क्या है कोशिश करते हैं, अपने आप को सच्चे मुसलमान की तरह नजर आते हैं। लेकिन वो टोपी भी रखा और शायद वो रोजे से भी था, होगा मुसलमान तो था, लेकिन फोन में सबके सामने, सौओं की भीड़ है उसके सामने ऐसी गालियां दे रहा है, वो भी मजाक में गालियां दे रहा, माँ बहन की गालियां दे रहा। पता नहीं उधर से भी वो गालियां दे रहा होगा। यानी इसको गुनाह ही नहीं समझे, इसलिए रमजान के महीने में थोड़े तो सुधर जाते हैं लोग, गुनाहों से बच जाते हैं, लेकिन गालियों से तो नहीं बचे। अपनी जुबान पे कंट्रोल गालियों की तो नहीं करे। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हम गाली को गुनाह ही नहीं समझे, इसको कोई गलती नहीं समझे। अल्लाह के लिए गौर करना। आज मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह एक एक करके कि असल में ये गाली क्या होती है। सबसे पहले इस बात को भी समझने की जरूरत है, असल में ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया की जिंदगी एक तो हमारे लिए कीमती भी है और एक तो आर्जी भी है, जैसा कि हम सब जानते हैं। कीमती किस लिए है? ये दुनिया की जिंदगी कीमती इसलिए है कि यही वो दुनिया है जिसमें रहकर हम नेकियां करेंगे तो हमें जन्नत मिलेगी। इसी दुनिया में रहकर तो हम लोगों को क्या है, अच्छे अमल करना होगा। इसी दुनिया में जो हम अमल करें इसकी बुनियाद पर ही तो जन्नत और जहन्नम का फैसला होगा। तो इसलिए इस लिहाज से ये दुनिया हमारे लिए कीमती है, ये दुनिया बड़ी कीमती चीज है। इसको अगर हम गुनाहों में गुजारेंगे तो फिर हमारा फैसला जहन्नम का होगा। और इसी तरह आर्जी तो इसलिए है कि हमको किसी को भी मालूम नहीं कि कब किसकी मौत आने वाली है, कोई पता ही नहीं चलता कि किसकी मौत कब आने वाली है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, मौत बोले तो एक बात याद आई। पिछले साल रमजान के ही महीने में मई 7 तारीख था, शायद जुमा का दिन था, बहरहाल रमजान का ही महीना था जब कोविड का बहुत ज्यादा ये चल रहा था। मेरा साथी मेरे पास कुरान और सुन्नत की दावत को अल्हम्दुलिल्लाह समझाने की वजह से अल्लाह ताला मुझे एक जरिया बनाया। वो माशाल्लाह इतना मवाहिद बन गया था, कुरान और सुन्नत का पाबंद बन गया था, नमाजी बन गया था, दाढ़ी वगैरह सब रखा था, जवान और मेरी तरह का, मेरी ही उम्र का था। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उसका इंतकाल हुआ था पिछले साल। और बराबर इस साल भी वही रमजान के महीने में एक मेरा और एक साथी, जो हम सब एक जगह रहते थे, हम सब मिलके दुबई में रहते थे, दूसरा साथी वो भी मेरी ही उम्र का था, उसके भी छोटे बच्चे, परसों रमजान में उसका भी इंतकाल हुआ। तो मौत किसी को बता के नहीं आती, किसी को बोल के नहीं आती। याद रखो ये हमारे लिए बड़ी इबरत होती है। किसी की मौत आती है, किसी की जनाजे में हम जाते हैं तो हमें अपनी मौत याद करना है, उसके ताल्लुक से भी याद करना कि अल्लाह उसके साथ क्या कर रहा होगा, क्या मामला हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे भी मौत के ताल्लुक से हमें सोचना होगा कि आज वो मर गया, मेरी ही उम्र का था, कल मैं भी मर सकता हूँ। ये ख्याल किसी को नहीं आता, इसलिए हमारी जिंदगियां तब्दील नहीं होती, इसलिए हमारी जिंदगियों में तकवा, अल्लाह का डर नाम की चीज नहीं नजर आती। अल्लाह के लिए गौर करना। तो बहरहाल ये दुनिया की जिंदगी ही है, बड़ी कीमती भी है और आर्जी भी है। तो आज हम लोग क्या है, आमतौर पर ये गालियों को गुनाह ही नहीं समझे। और गालियां देने वाले से याद रखो, लोग जो समझते हैं ना कि गाली दे के हम रौब जमाएंगे, मतलब अगर कोई ऐसा आदमी है वो समझता है कि मैं गाली देने से लोग मुझसे डरेंगे, हालांकि डरते नहीं। वो डरते किस लिए है कि तेरी गंदी जुबान की वजह से डरते हैं। इस जुबान के ये अल्फाज सुनने से बेहतर है कि उससे दूर रहो भाई। उसको सलाम करने से डरते हैं, उससे नफरत करते हैं। ये गंदी जुबान है, ये इंसान ही गंदा है। उसकी एक जुबान जो गंदा काम करती है, पूरी इंसान के कैरेक्टर पर उसका असर होता है। उससे मिलना, उससे दोस्ती करना, उसके करीब जाना, उससे बात करना कोई पसंद नहीं करता। याद रखो इस बात को। फिर इसी तरह अब गाली असल में बोलते किसको है? हर उस बेहुदा और गंदी बात को गाली कहते हैं जिसकी वजह से लोगों की इज्जतों पर आंच आती हो, लोगों की बेइज्जती करने के लिए, लोगों की इज्जत उछालने के लिए जो भी बात इस्तेमाल करते हैं, गंदी बात, बेहुदा बात, उसे गाली कहते हैं। फिर इसी तरह और लान तान की सब शक्लें गाली कहलाती हैं। लान तान की सब शक्लें, जैसा कि हम बोलते हैं ना आमतौर पर, इसको तो लान तान को भी हम लोग कोई बुरा नहीं समझते। कुछ लोग होते हैं जो माँ बहन की गाली और गंदे गालियां तो नहीं बोलते, लेकिन लान तान बहुत ज्यादा करते हैं, जैसा कि सत्यानाश हो जाए किसी का,
है ना। आमतौर पर अपने बच्चों को गालियां देते हैं, इसको भी कोई बुरा नहीं समझते। ऐसे दिन देखने से पहले तुझे अल्लाह उठा लेता तो अच्छा था, तेरा नाम फातिहा में आता तो अच्छा था, अल्लाह तुझे उठा लिया तो अच्छा था, तू खबर में कब जाता। इस तरह की जो मट्ठियां डालते हैं, गालियां देते हैं, ये सब चीजें, ये लान तान करना भी गाली की एक शक्ल है। याद रखो, ये लान तान भी क्या है, गाली की एक शक्ल है। और सिर्फ मर्द हजरात में ही नहीं, अक्सर तो मर्द हजरात में ये गालियां होती है जो कि आवारे किस्म के लोग होते हैं, जो ज्यादातर होटलों पे, नुक्कड़ों पे जो लोग जिंदगियां गुजारते हैं, जिनके हाथों में क्या है, वो सिगरेट, पान और वो शराब के आदि, ये जितने भी लोग होते हैं, इनकी जुबान तो बहुत ज्यादा गंदी होती है। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दीनदार और शरीफ समझते हैं, नमाजी भी है, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, औरत है तो बुर्का भी पहनती है, नमाज भी पढ़ती है, उनकी जुबान भी गालियों से बची हुई नहीं है। वो लोग भी आपस में गालियां देते हैं। फ्रेंड्स है, अच्छा मर्द ही नहीं, औरतें भी क्या है, आपस में फ्रेंड्स है, सहेलियां है, क्या करते हैं, गालियां दे लेते हैं। और वो गालियों को मजाक के तौर पर कमीनी कोई बोल दिए, क्या है ये चीज, कोई बोल दिए तुम कुत्ती हो, गद्दी हो, फलां चीजें, ये तमाम चीजें क्या है, ये भी गालियां हैं। इसको तो कोई बुराई नहीं समझता, उन्होंने इनको कमी नहीं बोल रहे, इन्हें उनको कमी नहीं बोल रहे, क्या है, बराबर है। क्या है ये चीज, ये भी गाली की एक शिकल है। याद रखो इस चीज को, इन तमाम बुरी बातों से, इन तमाम बुराइयों से अपने आप को क्या है, बचाने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग तो शरीफ बनते हैं सिर्फ कुछ लोगों के सामने दिखाने के लिए, मतलब मियां बीवी है, लोगों के सामने एक दूसरे को बड़ी इज्जत से बात करते हैं, अजी अजी बोल लेते हैं, लेकिन आपस में होते हैं तो अरे तुरे आगे तुगे तक चले जाते हैं, है ना। बहुत सारे शोहर को, मर्दों को ऐसा देखा जो लोगों के सामने अपनी बीवी को अजी बोल के बुलाते, लेकिन अकेले में होते हैं तो आगे बोलते हैं, समझ रहे। तो बहरहाल इसको हम लोग कोई बुराई नहीं समझे, यानी एक एक करके इंशाल्लाह वो चीजें भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तो गौर करना। तो गाली क्या है ये हम लोगों को समझ में आ गया। अल्लाह ताला कुरान में गाली के ताल्लुक से क्या कहता है, सबसे पहले उठाइए सूरह काफ आयत नंबर 18। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, इंसान मुंह से कोई लफ्ज निकाल नहीं पाता मगर के उसके पास निगहबान तैयार है। इस चीज को याद रखिए, बड़ी अहम आयत है। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, इंसान जुबान से कोई चीज निकालता है मगर उससे पहले उसके पास लिखने वाला निगहबान मौजूद है, यानी फरिश्ता है, लिख लेता है। चाहे तुम अकेले में बोले, आपस में बोले, लोगों के सामने बोले, छुपा के बोले, दोस्त को बोले, दुश्मन को बोले, जो भी बोले होंगे, चाहे आप गीबत करे, गाली दिए, बुरी बात बोले, गंदी बात बोले, कौन सी भी बात बोले, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता उसे लिख लेता है। जिसको ये एहसास हो कि मेरे सामने कमजोर इंसान ठहरा हुआ है, वो पलटा के मुझे गाली नहीं दे सकता। मैं समझता हूं मैं ताकतवर हूं, जो चाहे इसको गालियां दे दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, दुनिया में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। बेचारा वो कमजोर है, तुम उसको गालियां दे रहे हैं, वो पलटा के जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह का फरिश्ता लिख लिया, अल्लाह का फरिश्ता लिख लिया। इसलिए जुबान से कोई लफ्ज निकालने से पहले सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि फरिश्ता लिख रहा है, अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, ये जहन में ख्याल हो। इसी तरह सूरह बनी इसराइल है, आयत नंबर 53 है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वकुल लिइबादी यक़ूलुल्लती हिया अहसन इन्नश-शैतान यंज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानी अदुव्वन मुबीना। और मेरे बंदों से कह दीजिए कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाला करे, क्योंकि शैतान आपस में फसाद डलवाता है। बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। अब अल्लाह ताला यहां पर क्या समझा रहे कि इंसान जब भी बात करे, बहुत अच्छी बात अपनी मुंह से निकाले, अच्छी बात करे तो अच्छी बात। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर बोलना हो तो सिर्फ अच्छी बात बोलो, वरना खामोश रहो, वरना खामोश रहो। अपनी जुबानों से जो हरकत करते हो ये तुम्हें जहन्नम में पहुंचाने वाली है। चाहे वो गीबत हो, चाहे वो चुगली हो, चाहे वो गालियां देना हो, चाहे वो तोहमतें लगाना हो, चाहे झूठे इल्जाम लगाना हो, ये तमाम चीजें जो जुबान से हम लोग आमाल कर रहे हैं, ये आमाल हमें जहन्नम में ले जाने वाली है। इसलिए अल्लाह ताला को हुक्म है कि मेरे बंदों से कह दे कि वो बहुत ही अच्छी बात मुंह से निकाले,
کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے. منہ سے اگر زبان سے ہم گندی باتیں نکالیں گے آپس میں فساد ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو اس لیے اچھی بات نکالے ورنہ خاموش رہے. انسان کا کھلا دشمن شیطان ہے، شیطان لڑوانا چاہتا ہے. اچھا، اب یہ دو آیتیں سننے کے بعد چلیے گالی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہا ایک ایک کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے، سب سے پہلے زمانے کو گالی نہیں دینا. نمبر 1، عام طور پر جو ہمارے سماج میں ہوتا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، وہ کیا ہے؟ زمانے کو گالی دینے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھو، عرب میں جو عرب کے مشرک تھے، اسلام آنے سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے سے پہلے عرب کے جو مشرک تھے وہ لوگ آپس میں کبھی اگر ان کی زندگی میں آفتیں آتی تھی یا مصیبتیں آتی تھی یا تکلیفیں آتی تھی تو زمانے کو گالیاں دیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اب یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں یہ بھی یاد رکھ لو. اس سے پہلے بھی میں آپ کو سمجھایا. ایک حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ حدیث، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. اب یہ حدیث قدسی ہے، کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے. اللہ کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میں دن رات کو تبدیل کرتا ہوں. صحیح بخاری کی یہ روایت. کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے گالی دے رہا ہے آدم کا بیٹا. اب اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ زمانے کو گالی دینا اللہ کو گالی دینا ہے. کوئی اگر زمانے کو گالی دیتا ہے تو سمجھو وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانہ تو میں ہوں، میں دن رات کو تبدیل کرتا ہوں. تو آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دے رہا، میرا بندہ مجھے گالیاں دے رہا. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ہم جانے انجانے میں آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے رہے، زمانے کو گالیاں دے کر اللہ کو گالیاں دے رہے. ہم بولتے نا، ارے کیسا زمانہ آ گیا، اس زمانہ کتنا خطرناک ہو گیا. دیکھو، ایسا زمانہ دیکھنے سے پہلے مر جاتے تو اچھا تھا. ایسا زمانہ کیوں تو بھی دیکھے ہوں گے. زمانے کو گالیاں دینا، بہت برا زمانہ آ گیا. ہاں، ایسا زمانہ کیوں تو بھی آیا ہوگا. زمانے کو کسی بھی شکل میں اگر گالیاں دیتے ہیں تو یہ اللہ کو گالیاں دینا ہے. تو اس لیے کوئی بھی زمانے کو گالیاں نہ دے، چاہے ہمارے اوپر مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، تکلیفیں آئے. آج بچے اگر بگڑتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھا دیتے ہیں بچوں کو گالیاں دینا، اس کے ساتھ ساتھ زمانے کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھو، زمانے کو گالی نہیں دے سکتے. زمانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمانہ تو خود میں ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو اچھا، تو بہرحال یہ چیز ہے، زمانے کو گالی نہ دے. اب دوسری چیز، ہوا کو گالی دینا. ہوا کو گالی دینا، ہوا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہوا نہ چلے تو انسان 2 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہوا کے بغیر زندگی نہیں ہے. اس ہوا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو بغیر خرچے کے، بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے ہم کو جہاں بھی جاؤ وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہوا کا انتظام کر دیا. لیکن ہم ہوا کو گالیاں دیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو گالی نہ دو، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اور یہی کہو، یا اللہ اس میں ہمارے لیے خیر کر اور اس کے شر سے محفوظ فرما. ابو داؤد کی روایت. اگر کبھی تیز ہوا چلتی ہے تو ہم گالیاں دیتے ہیں. عام طور پر اکثر مسلمان یہ ہوا میں مٹھی پڑو کہاں سے تو بھی آ گئی گی، اس طرح کی بات کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس چیز سے. ہوا کو گالی نہ دو. اگر ہوا تیز چل رہی ہے تو ہم کیا بول سکتے؟ اے اللہ اس ہوا کے ذریعے سے اس میں میرے لیے خیر کر اور اس کے شر سے مجھے محفوظ فرما. اللہ اس کے نقصان سے مجھے محفوظ رکھ، بول کے اللہ سے دعا کرو.
لیکن ہوا کو گالی نہ دو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، زمانے کو بھی گالی نہیں دے سکتے، ہوا کو بھی گالی نہیں دے سکتے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخار کو گالی نہ دو۔ بخار اگر آتی ہے، عام طور پر ہمارے گھروں میں بخار آتی ہے، بچوں کو بخار آتی ہے، تب بھی ہم گالیاں دیتے ہیں۔ ایسی بخار آئی، ماں ہمارا بچہ اٹھ نہیں سکا، یہ بخار ہمارے کچھ آنا کیا، یہ بخار ہمارے بچوں کچھ بار بار آتی ہے، یہ دوسروں کو کیوں نہیں آتی، ہمارے کچھ لگ جاتی ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، وہ جو باتیں ہیں نا وہ میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا، آپس میں لوگ عام طور پر بول لیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، الگ سے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بخار کو بھی گالی نہ دو، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی نہ دو، بخار بندے کو گناہوں سے اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی زنگ کو۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ کیا ہے؟ بخار آتی ہے تو ناراض ہونا، شکوے شکایتیں کرنا، گالیاں دینا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جب آتی ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے بخار کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث بھی ہے نا جو ہمیشہ عام طور پر ہم سنتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ مومن کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو بخار کو گالی نہ دو، بخار بھی آتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہماری اس بیماری کو شفا کرے، اللہ ہماری بخار کو، ہمارے بچوں کی بخار کو جلد سے جلد کیا ہے ختم کر دے، اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اس طرح ہم لوگ دعائیں کریں، لیکن بخار کو گالیاں نہ دے۔ ہم جب بھی بیمار ہوتے ہیں، اور بیمار پرسی کے لیے جب بھی کوئی جاتا ہے، اس بات کو بھی یاد رکھو، اگر کوئی مشکل میں ہے، اگر کوئی پریشانی میں ہے، اگر کوئی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اگر کسی کا سرجری ہوا، آپریشن ہوا، کچھ بھی ہوا، جب ہم جاتے ہیں تو ان کو جب صبر کی تلقین ہم کر رہے ہیں تو اس وقت یہ بات بھی بولے کہ دیکھو صبر کرنا اس تکلیف پر، صبر کرنا اس بخار پر، صبر کرنا اس بیمار پر، کیونکہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ یہ ان کو ہمت دینا ہے، ہم کو ایسے کلمات بولنا ہے ان لوگوں کے سامنے کہ اس بیماری کی وجہ سے، اے میری بہن، اے میرے بھائی، اس بخار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو مٹا رہا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ آج اصل میں ہمارا ذہن ایسا ہو گیا کہ ہم اصل بیمار ہونا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا میں کوئی تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، ہم اس دنیا میں کوئی پریشانی اٹھانا نہیں چاہتے، دنیا بھی ہماری سکون کی گزرے اور جنت بھی ہم کو سکون سے مل جائے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں جو بھی تکلیفیں آتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا رہا، حتیٰ کہ ہمارے بخار کی وجہ سے بھی ہمارے گناہ مٹ رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں 8 دن ہو گیا ہماری بچی ایسی ہے، 15 دن ہو گیا ہمارا بچہ ایسا ہو گیا، 1 مہینہ ہو گیا ہمارے شوہر ٹھیک نہیں ہو رہے۔ عام طور پر یہی شکوے شکایتیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے، ہم تہجد بھی پڑھ رہے، ہم دعا بھی کر رہے، ہماری بیماریاں کب کم ہوتی کہ اس کے لیے کچھ خاص وظیفہ ہے کیا، خاص دعا ہے کیا، یہ ہے کیا، وہ ہے کیا، بلکہ اکثر لوگ پھر بہت سارے غلط اعمال بھی کر لیتے ہیں۔ یاد رکھو بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماریوں کو شفا کرنے والا بھی اللہ، بیماری کتنے دن رہے گی اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا۔ ہم اصل تقدیر پر ایمان جیسا رکھنا ہے ویسا نہیں رکھتے، اسی لیے ہماری پریشانی ہے۔ انشاءاللہ وہ عنوان بھی آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال اصل میں کرنا کیا ہے کہ اللہ میری تقدیر میں کب لکھا ہے اس بیماری کی شفا، تبھی کم ہوگی نا میری بیماری، چاہے میں لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کروں، بڑے سے بڑے ہاسپٹلز بھی جاؤں، لیکن وہ بیماری شفا نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھا۔ تو یہ سوچ کر صبر کریں اور علاج کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن گالیاں دینا اور شکوے شکایتیں کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے گالیاں دینا، اس بات کو یاد رکھو۔ کتنی 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز دیکھیے، یہ دین ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو عام طور پر لوگ بول رہے نہیں، یہ تمام چیزیں چھپا دی گئی ہے، بتائی نہیں جاتی، اس کو معمولی سمجھ لیا گیا ہے۔ یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مرغ کو گالی نہ دو۔ مرغا جو ہوتا ہے نا اس کو بھی گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، جانوروں کو گالی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ وہ تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ مرغا کیا کرتا؟
किसी के घर में अगर कोई कभी पाल के देखे मालूम होगा, फजर के वक्त मुर्गा आवाज देता है, वो जगाता है फजर के लिए। अल्लाह अकबर। पता नहीं इसमें क्या हिकमत है, अल्लाह ताला कैसा जानवर है वो। हम सुबह हुए तक भी इंतजार नहीं करता, वो बराबर फजर के वक्त वो आवाज देता है, वो जगाता है फजर के लिए, नमाज के लिए जगाता है। आज हम जानवरों को गालियां देते, ये भी मना किया गया। बल्कि जानवरों को गालियां देना नहीं, हमारे पास क्या होता, जानवरों के ऊपर डाल के गालियां देते है ना। खास तौर से घरों में जो क्या ये रिश्ते हैं ना, बड़े खतरनाक रिश्ते, हमारे दुश्मनी वाले रिश्ते, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ। हाँ, ननन भाभी के रिश्ते, हाँ, देवरानी जटानी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता, ये 3 रिश्ते बड़े खतरनाक होते हैं। ये हमेशा दुश्मनी चलते रहती, इस पर हजारों एपिसोड के सीरियल्स चलते ना, वो देख देख के हम लोग सीखते रहते हैं ना। हाँ, तो ये बड़े खतरनाक रिश्ते हैं जो अगर डायरेक्ट नहीं गाली दे सकते तो जानवरों पर डालकर जरूर गालियां देते हैं। कभी मुर्गी के ऊपर डाल के गालियां दिए, कभी कुत्ते के ऊपर डाल के गालियां दिए, कभी बिल्ली के ऊपर डाल के गालियां दे दिए। हाँ, और इतना हसद भरा हुआ है लोगों के अंदर, इतना जलन भरा हुआ है, किसी की ना खूबसूरती अच्छी लगती है, ना किसी की सेहत अच्छी लगती है, ना किसी की खुशी अच्छी लगती है, ना किसी की तरक्की अच्छी लगती है। अल्लाह उसको दिया तो उसकी खुशी हमको बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह अकबर। छोटे छोटे बच्चों को भी गालियां देते हैं लोग, आज छोटे छोटे बच्चों को गालियां देते हैं, देख नहीं सकते। अगर किसी के घर में औलाद हो, आज ऐसे ऐसे वाकयात, अल्लाह अकबर। गालियां देने का मतलब क्या है, सिर्फ गालियां नहीं देते बल्कि उसके लिए एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं। अल्लाह अकबर, कत्ल कर देते हैं। कैसा हुआ मसला मैं आप लोगों के सामने, देखिए ऐसे तो कई न्यूज आते हैं, हम देखते हैं, लेकिन कुछ ही दिन पहले शायद रमजान के ही महीने में मैंने ये न्यूज पढ़ा था, हैदराबाद का 5 साल, हैदराबाद का या निजामाबाद का ही कुछ था, बहरहाल मुझे याद नहीं है, 5 साल या 7 साल के लड़के को क्या है, कत्ल कर दिया गया, पानी में डुबो के मार दिया गया। और मारने वाली कौन है, मारने वाली खुद, वो रिश्ता क्या होता भाई, ये मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ, ये ननन जेठानी, ये पता नहीं बनाने वाला भी कैसा बनाया कि ननन देवरानी जेठानी, ये पता नहीं क्या क्या चीजें ये जो बोलते हैं ना। तो बहरहाल ये ननन भाभी के ही जो रिश्ते थे कि एक मर्तबा इसको, मतलब वो ननन को या भाभी को कुछ तो भी एक की वजह से दूसरे को परेशानी, कुछ तो भी तकलीफ हुई थी, तो वो दिल में रख करके उसके ननन की, उसके लड़के को कत्ल करने की पहले से दुश्मनी बिठा के रखी थी, वो भी मुसलमान औरत, कोई गैर मुस्लिम की बात नहीं बोल रहा। बेचारा 7 साल का लड़का था, उसको पानी में फेंक के मार दी औरत, अपने ही ननन के बच्चे को या अपने जेठानी के बच्चे को मार दी, 3-4 दिन के माल। मतलब ये हसद है लोगों के अंदर, ये जलन है लोगों के अंदर कि ये आपस में एक दूसरे की खुशी को देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनको बच्चा हुआ, उनको बेटा हुआ, मेरे को बेटी हुई, उनको औलाद हुई, मेरे को औलाद नहीं हुए, उनकी तरक्की हो रही है, मेरी तरक्की नहीं हो रही। ये क्या है, हसद है, ये जलन है। इसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे को आज कत्ल करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये खतरनाक चीज है, समझ रहे ना। तो मैं क्या बोल रहा था, असल में जानवरों को भी गाली नहीं देना, जानवरों के ऊपर डाल के भी गाली नहीं देना, ये याद रखो। अक्सर लोग, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, कि जानवरों के ऊपर डाल के गालियां देना, और सुबह उठ के गालियों से ही उनका दिन शुरू होता है। अक्सर घरों में ऐसा होता है, सुबह उठते ही गालियां, सुबह जागते ही, जैसा डोर खोलते, सुबह आंगन झाड़ते, झाड़ू देते देते ही गाली शुरू हो जाती है। सुबह से शाम तक उनकी जुबान पर गालियां ही गालियां होती है उनसे। इसीलिए आज देखते हैं ना, कई लोगों के घरों में आपस में भाई जो होते ना, शादी से पहले एक जगह रहते, एक घर में रहते, मिलके रहते, मिलके घर बना लेते। हाँ, एक ही घर में क्या है, इसका एक कमरा होता है, इसका एक कमरा होता है, हर एक का अलग अलग क्या है दरवाजे होते हैं। लेकिन जैसे ही शादियां हो जाती हैं तो वो 2 दरवाजों के बीच में दीवारें आ जाती। किसकी वजह से आई है? तकलीफ नहीं होना, औरतों की वजह से ही ज्यादा होता है ऐसा। मर्द हालांकि पहले मिलके ही रहता, 2 भाई कभी आपस में नहीं लड़ लेते, शादी से पहले कभी नहीं लड़ लेते। या तो इसकी बीवी बुरी होती है, या तो उसकी बीवी बुरी होती है, या तो इसकी बीवी की जुबान गंदी होती है, गलत होती है, या तो उसकी बीवी की जुबान गंदी गलत होती है। सिर्फ वो भी मसला कहां से शुरू होता, झाड़ू से शुरू होता, कचरे से शुरू होता। मेरे आंगन में इन्हों कचरा डाले, उनके आंगन में ये लोग कचरा डाले। अब सुबह उठते ही गाली,
पता नहीं वो हवा से आ गया होगा कचरा, ये भी नहीं समझते। कोई जानवर आके कुछ तो भी खराब कर दिया होगा, ये नहीं समझते। सुबह उठते ही गालियां शुरू। अब डायरेक्ट गालियां दिए तो हाँ उन्होंने भी हम पढ़ लेते, उन्होंने भी गालियां दे रहे बोल के अब सीधा उठते क्या कुत्ता, क्या बिल्ली, क्या मुर्गी, क्या दिखी उसके ऊपर डाल के उसको गालियां दे देते। इसको मौत तो भी नहीं आती है, रोज हमारे घर के सामने चाह रहा बोल के बोल देते कुत्ते को देख के। अब उन्होंने समझ लेते हाँ इन्हें कुत्ते को नहीं बोली, इन्हें मेरे कुछ बोली बोल के उन्होंने पढ़ लेते। उन्होंने भी मौका देखते, उन्होंने बिल्ली मिले तो मैं गालियां देती बोल के उन्होंने देखते। तो ऐसा नहीं होना, गाली चाहे किसी भी शक्ल में हो, समझ रहे ना। तो गालियां देना बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से है। तो इस बुराई से हम लोगों को क्या है, बचना चाहिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, सवारी को गाली देना। सवारी को गाली देना, सवारी चाहे वो जानवर की शक्ल में हो, चाहे उस जमाने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सवारी जानवर की शक्ल में थी, गधों पर सवारी करते थे, घोड़ों पर सवारी करते थे। आज बाइक है, कार है, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सवारी है। तो इसको भी गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कैसे, याद रखो, सवारी एक बहुत बड़ी नेमत है। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंटनी पर लान तान किया, ऊंटनी को गालियां दिया। जानवर भी आज भी हो या इससे पहले भी जानवर है बेचारा, वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो कभी बात नहीं सुनता। तो उस वक्त क्या है, जो उसका मालिक होता है जानवर का, तो वो गालियां दे देता है, उसके ऊपर जुल्म करता है। याद रखो ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी गुनाह है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ऊंटनी पर लान तान करना शुरू कर दिया, ऊंटनी को गालियां दे दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको छोड़ दो, अब ये लानत की गई है, इसमें तेरे लिए कोई खैर बाकी नहीं। सही मुस्लिम की रिवायत। उस ऊंटनी को छोड़ दे, तो उसको गालियां दिया, तो उस पर लान तान कर लिया, उसमें तेरे लिए कोई खैर नहीं है, उसको छोड़ दे बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज गाड़ियों को सुबह उठते ही वो गालियां देने की जिसको आदत रहती ना, उन्हें किसी भी हालत में गालियां देना ही देना है। उन्हें बीवी को भी गालियां देता, बच्चों को भी गालियां देता, पड़ोसियों को भी गालियां देता, हर चीज में उसको गाली निकलती। सुबह उठ के सीधा गाड़ी स्टार्ट कर, अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई ना, सीधा गाड़ी को गालियां देना शुरू कर देता। एक गाड़ी में मट्ठी पड़ो, इसको अंगार तो भी नहीं लगता, इसको कहीं को तो भी लिया कि बल्कि इसको और इसको जो बेचा उसको सबको गालियां दे देता। अगर कोई जहेज में लिया, समझो गाड़ी जहेज में मिले, सो गाड़ी अगर खराब हुई या नहीं चल रही, तो सिर्फ वो गाड़ी नहीं बचती, बल्कि वो कौन गाड़ी दिया कि उसको भी, उसके खानदान को भी गिन देता है, उड़ती गालियां दे देते। याद रखो ये बहुत बड़ी गलती है, सवारी को भी गालियां नहीं देना। और आमतौर पर लोग एक दूसरे की शक्लों को देख के गालियां दे लेते। आज सुबह उठ के किसकी शक्ल देखा कि रे मनुष्य शक्ल देख लिया मैं, मेरा काम पूरा खराब हो गया। याद रखो, इस तरह फिर उसको याद करके उसको गालियां देना, तो ये बहुत बड़े गलतियों में से है। तो बहरहाल क्या है, सवारी को भी गालियां नहीं देना। फिर इसी तरह छठवीं चीज, गुनाहगार को भी गालियां नहीं दे सकते। कोई गुनाह कर रहा है तो गुनाहगार को भी गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। कैसे, सुनिए। बेशक असल में गुनाह क्या है, गुनाह अल्लाह ताला को पसंद नहीं है ना, गुनाह को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, गुनाह से अल्लाह ताला नफरत करता है। फिर इसी तरह गुनाह नहीं करना चाहिए, हमको भी गुनाह से दूर रहना चाहिए, गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाहगार के लिए हिदायत की दुआ करना और उसकी इस्लाह की कोशिश करना, यह करना है हमको। अगर कोई गुनाह कर रहा, कोई शराबी है, कोई गालियां देने वाला है, या फिर कोई भी कुछ बेनमाजी है, हाँ गुनाहगार है, हमको मालूम है, लेकिन हम उसको गाली नहीं दे सकते, उसकी हिदायत की दुआ कर सकते, गाली नहीं दे सकते हम। उसको इस्लाह करो, उसको बुलाओ, उसको समझाओ, या और फिर अकेले में है तो उसके लिए इस्लाह की दुआ करो। अल्लाह फला मेरा भाई, फला मेरा दोस्त फला गुनाह में मौजूद है, अल्लाह उसको उस गुनाह से निकाल, अल्लाह उसको उस बुराई से निकाल, अल्लाह उसको हिदायत दे दे, अल्लाह उसको सही समझ दे दे, ये दुआ करो उसके लिए। लेकिन आमतौर पर यह होता है कि आज हिदायत की दुआ करने वाले बहुत कम है, लेकिन गालियां देने वाले ज्यादा है। अगर कोई जाते ना, खास तौर से ये तकब्बुर आ जाता बहुत सारे लोगों के पास। जैसे दीन की समझ हो जाती ना, जैसे इन्हें दीन को समझ लेता, इन्हें कुरान और सुन्नत को मानने का इसको दावा आ जाता, हो गया भाई मेरा, और क्या है, मैं तो शिर्क नहीं कर रहा, मेरे लिए जन्नत है, अब मैं क्या भी करे तो चलता, बोल के जैसे तकब्बुर आ जाता ना, दीनदारी का तकब्बुर, अब उन्हें हर गुनाहगार को गालियां देना शुरू कर देता। चलते चलते रास्ते में कोई दरगाह के पास बैठे हुए दिखे ना, फौरन बोल देता, देखो मुशरिका, हिदायत नहीं मिलती इनको, बदमाशा है बेटे, मुशरिका है, काफिरा है, क्या क्या की बोल देता।
اگر کوئی کچھ غلطی کرا تو اس کی غلطی کو انہیں یہودی ہے، انہیں عیسائی ہے، انہیں فلاں ہے فلاں، بلکہ یہ باتیں دیندار لوگوں میں پائی جاتی، بلکہ مسجدوں میں پائی جاتی ہے ایسی باتیں، مدرسوں میں پائی جاتی ہیں ایسی باتیں، ایک دوسرے کو کافر، مشرک، یہودی، منافق، عیسائی کیا کیا نہیں بولے تھے آج. ایک جماعت والا دوسرے جماعت والے کو گالیاں نہیں دے رہا آج. گالیوں سے دیندار بھی نہیں بچا، دیندار سمجھنے والا گالیوں سے خود نہیں بچا. یہ جماعت والا وہ جماعت والے کو گالیاں دیتا، مسجدوں میں بیٹھ کے، مدرسوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے، ہر فرقے والا، اور دوسرے کو گالیاں دیتا ہے. ہاں بھلے انہیں کرتے سو گناہ ہوں گا بھائی، اس کو نہیں معلوم، اس کے پاس علم نہیں ہے، ہاں ابھی اس کو کیا ہے سمجھ نہیں آئی، اللہ ہدایت نہیں دیا، تو اس کے لیے کوشش کرو نا تم. ٹھیک ہے اس کے گلے میں تعویذ ہے، ٹھیک ہے اس کے گھر میں نیمبو لٹک رہا، ہاں کیا ہے ناریل ہے یا پھر کچھ بھی ہے، ایسے گناہوں میں ملوث ہے. کیا کریں گے؟ اس کو گالیاں دیں گے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. نہیں نہیں نہیں، اس کو بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو دعوت دو، اس کو کھانے پہ بلاؤ، کبھی اس کو چائے پلانے کے ذریعے سے بلاؤ، کبھی اس کو کوئی کتاب دے دو، اس کو کوئی ویڈیو شیئر کرو، اس کو کسی اجتماع میں بلاؤ. اور اگر حقیقت میں تم اس کے سچے خیر خواہ ہے، اپنی نمازوں میں اس کے لیے دعا کرو. اگر حقیقت میں سچے خیر خواہ ہے. گالیاں دینا، گالیاں دینے سے ہم سمجھتے گالیاں دے کے ہم بہت بڑا کام کرے بھائی. ہاں یہ علم کا فخر آ جاتا ہے لوگوں کے پاس، 4 آیتیں کیا سیکھ لیتے، 4 حدیثیں کیا سیکھ لیتے، اب یہ فخر آ جاتا ہے کہ میں جنتی، باقی سب جہنمی، باقی سب جاہل، باقی سب مشرک، باقی سب کافر. بلکہ بول دیتے بھی، ایک ایک حدیث سنا کے دیکھ یہ حدیث میں ہے نا انہیں کافر ہے، تو کافر ہے، بس تو نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہے. اس طرح نہیں بول سکتے ہم، کسی کو کافر نہیں بول سکتے. کیا پتا اللہ کل صبح کو ہدایت دے دے، اس کو اللہ تعالیٰ جنتی بنا دے. یاد رکھو. تو اس لیے ہم کسی کو دینداری کی وجہ سے بھی، گناہ گار کو بھی ہم لوگ گالیاں نہیں دے سکتے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شرابی کو سزا دی گئی تو اس وقت ایک صحابی دیکھ کر بولے اللہ تجھے ذلیل کرے. سزا مل رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بولے کہ اللہ تجھے ذلیل کرے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ اس طرح کہہ کر شیطان کو خوش نہ کرو. صحیح بخاری کی ہے، تم اس طرح کہہ کر شیطان کو خوش نہ کرو. گناہگار کو بھی تم گالی نہیں دے سکتے. رائٹ، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب 7ویں چیز، ملازم کو گالی دینا، یہ بھی جائز ہے. ملازم، اگر ہمارے آفس میں، ہمارے کمپنی میں، ہمارے دکان میں، ہمارے کاروبار میں کوئی کام کرنے والا ہے، ملازم ہے، محنت کے لیے آیا، مزدوری کے لیے آیا، خاص طور سے مزدوروں کو لوگ جو کام پہ بلاتے نا بڑے بے رحمی کے ساتھ ان کے اوپر گالیاں دیتے ہیں. ماں بہن کی، ان کے خاندانوں کی گالیاں دیتے، ان کے پیدائش پر گالیاں دیتے. آج لوگ کس کس چیز پر گالیاں نہیں دیتے؟ ان کے رہنے کے علاقے کو لے کر گالیاں دیتے، ان کے رنگت کو لے کر گالیاں دیتے، ان کے کپڑوں کو گالیاں دیتے، ان کے خاندان کو لے کر گالیاں دیتے، ان کے ماں باپ کی گالیاں دیتے ہیں. کس کس چیز کی گالیاں دیتے ہیں؟ کیسی پیدائش ہے تیری؟ کتنے لوگ نہیں بولتے پیدائش پر گالی. کیسے ماں باپ ہے تجھے، کیسا جنے ہوں گے تجھے، اعوذ باللہ، ماں باپ کو گالیاں دیتے. ایسے کتنے لوگ ہیں. کون سے جنگل کے رہنے والا ہے تو، کون سے زمانے کا رہنے والا ہے تو، کہاں سے آ گیا تو، اس کی شکل تو دیکھو. کبھی شکل میں تو شکل تو دیکھ لیا کیا آئینے میں؟ کیسی شکل لے کے آیا؟ جانور کی شکل ہے، فلاں کی ایسی ہے، فلاں کی ایسی ہے. اعوذ باللہ، منوس ہے تو، تیرے سے تو بھی وہ جانور بہتر ہے. ایسے کتنے گالیاں نعوذ باللہ، خاص طور پر کمزور لوگوں کے اوپر جو لوگ گالیاں دیتے ہیں. اپنے دکان میں کام کرنے والا، وہ نوکر، وہ مزدوری کرنے والا، وہ ملازم، اس کو بے رحمی کے ساتھ اس طرح گالیاں دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کو تو ہم جائز سمجھ لیے. کیوں؟ میں تنخواہ دے رہا ہوں نا اس کو، میں تنخواہ دے رہا ہوں، وہ میں جو چاہے کر سکتا اس کو، میں جو چاہے بول سکتا اس کو. یہ سمجھتے ہیں لوگ، نہیں بول سکتے بھائی. وہ آدمی غلطی کرا، اس کی غلطی بتاؤ. ہاں آپ کو غصہ آیا تو غصہ کر سکتے، اگر وہ کوئی چیز توڑ دیا، پھوڑ دیا، بات نہیں مانا، سستی کرا تو غصہ کر سکتے. غصہ کرنا الگ ہے، گالی دینا الگ ہے. غصہ کرنا الگ ہے، گالی دینا الگ ہے. تو اس لیے گالی نہیں دے سکتے، اس بات کو یاد رکھ لو. تو کیا ہے، ہم اس کو معمولی سمجھے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملازموں پر رحم کرنے کا، درگزر کرنے کا، معاف کرنے کا حکم دیے.
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितने, अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं 10 साल था मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, 10 साल था। उनकी माँ अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की माँ बचपन में ही लेके गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास छोड़ दिया अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करे। तो अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल थे और क्या बोलते, मैं 10 साल था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हुए जिंदगी में कोई नहीं सुने। लेकिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते मुझे गुस्सा भी नहीं करे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डांट डपट भी नहीं करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गाली मिलती ही नहीं, गाली नहीं मिलती। खादिम थे, खिदमत करते थे, लेकिन गाली नहीं दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखो इस बात को। तो बहरहाल मुलाजिम को गाली देने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे एक शख्स मुलाजिम को बुरा कह रहा था, कहा अभी तुझमें जाहिल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी मुलाजिम को गाली दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी भी तेरे अंदर जाहिलियत के जरासीम बाकी है, तेरे अंदर से अभी जहालत नहीं गई, अभी जाहिलियत की रस्में, जाहिलियत की जो जरासीम है अभी तेरे अंदर है, तो गालियां दे रहा है मुलाजिम को। इस तरह ना कह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी जुबान से बुरा ना बोलो, बेहूदगी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, बेहुदा गंदी बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल 7वीं चीज, मुलाजिम को गाली नहीं दे सकते। इसी तरह 8वीं चीज, बीवी को गाली देना। अब यहां पर बीवी को शोहर गाली नहीं दे सकता, शोहर को बीवी ना गाली दे, कोई किसी को गाली ना दे, गाली नहीं दे सकते। गुस्सा करना अलग चीज है, मैं बोल रहा हूं, लेकिन गाली देना अलग चीज है। आज गाली देने को मामूली समझ लिया गया है। कई लोग तो अपने रोब और दबदबे को कायम रखने के लिए गालियां देना, तानाजनी करना, ये मामूली चीज समझते हैं। बल्कि सिर्फ बीवी को नहीं गालियां देते, उसके अम्मा बाबा सबको मिला के गालियां दे देते हैं अगर कोई छोटी सी गलती भी हो जाती है तो इसलिए ये गालियां, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत, अपनी बीवी को गाली ना दो। एक जमाना था बहुत ज्यादा शोहर ही जुल्म करते थे, अपनी बीवियों को गाली देते थे, लेकिन आज ऐसा हुआ कि बीवी इतनी खतरनाक उसकी जुबान होती है कि शोहर उसकी जुबान से पनाह मांगता है कि ये कैसी जुबान है भाई। बड़े खतरनाक औरतें आज होती है जिसकी वजह से लड़ाइयां, झगड़े, फितने, फसाद, मारम पीटी, तलाक तक नौबत आ जाती है। इसलिए जुबान पे अगर कंट्रोल रहे ना, इससे पहले भी मैं बोला था, अब याद आया तो एक बात बोल रहा हूं, सुनो गौर से। तो बहरहाल वो क्या मिसाल थी कि एक मर्तबा ऐसे, खासतौर से मियाँ बीवी के ही झगड़े ज्यादा होते हैं, अक्सर आम तौर पर जो झगड़े होते हैं वो मियाँ बीवी के ही होते हैं। तो एक मर्तबा, बल्कि मेरे पास भी कई मसले ऐसे आते हैं, कई लोग क्योंकि अब इल्म नहीं है, बेचारी औरतें क्या करती है, उधर इधर जाती है, कोई मौलवी साहब दिख गए, उनको कोई यूट्यूब पे नजर आ गया, अरे माशाल्लाह इन्हों मौलवी दिख रहे, दाढ़ी टोपी है, तकरीरें कर रहे, चलो इनसे ही मसला पूछेंगे। क्या पूछेंगे मसला, सीधा उठाते हैं, कॉल करते हैं या व्हाट्सअप करते हैं, मौलवी साहब हमारे घर में झगड़े बहुत हो रहे, कुछ तो भी अस्कार रहे तो कुछ तो भी दुआ रहे तो बोल दो ना, झगड़े खत्म करने की दुआ बोलो, ये करो करो। ऐसा एक औरत एक मौलवी साहब के पास गई, कहते हैं मौलवी साहब मेरे घर में भी झगड़े बहुत हो रहे, मेरे और मेरे शौहर के दरमियान बहुत झगड़े हो रहे, बार बार झगड़े हो रहे, मेरे शौहर मुझे बहुत गुस्सा कर रहे, गालियां दे दे रहे, फलां कर रहे, इसको कुछ तो भी एक तावीज दे दो। सबसे पहले तो ये होता है, तावीजों की तरफ ही लोगों का जहन जाता है, तावीज दे दो, दुआ पढ़ के फूंक दो, ये कर दो वो कर दो। अब मौलवी साहब भी बोले अच्छा ठीक है, मियाँ बीवी का झगड़ा है ना, ठीक है, एक बाटल में पानी लेके आ ले, ठीक है, बाटल में पानी लेके आ लिए, ढक्कन खोले, मौलवी साहब क्या करे, कुछ तो भी पढ़े जैसा करे, दुआ पढ़ दिए, उस बाटल में फूंक दिए, फूंक दे के बोले कि ढक्कन लगा देके जा, इसको लेके जाके घर में रख ले, जब भी तेरे घर में झगड़ा शुरू हुआ, तेरा शोहर गुस्सा कर रहा, सीधा हल्लू जाना, ये बाटल खोलना, मुंह में पानी ले लेना, बाटल बंद कर देना, रख देना, मुंह में पानी रखना, निगलना नहीं खाली बस। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 8 दिन हुआ, जब भी शोहर गुस्सा कर रहा, बीवी जा रही हल्लू बाटल से पानी मुंह में ले रही, निगल रही नहीं, खामोश बैठ जा रही होगा। 8 दिन के बाद झगड़ा खत्म, खामोश भी काम बैठते। और अरे क्या पावरफुल दुआ दिए मौलवी साहब, जाके और सहेली को बोल दी, जा वो मौलवी साहब के पास, पावरफुल दुआ है उनके पास। क्या दुआ दिए, कुछ भी नहीं, बाटल में फूंक के दे दिए। देख, जब भी मेरे शोहर बोलते हैं ना, खासतौर से भाना को बहुत जल्दी लगाते, ये बात, तेरे भाईजान देख अब झगड़ा खत्म हो गया, तू भी ऐसा कर ले, तेरे शोहर को कंट्रोल में ला सकती, तो कुछ भी नहीं, जा, खाली ऐसा दुआ पढ़ के दे दिए मेरे को, मैं मुंबई लेके ठहर जारी हो गया, झगड़ा खत्म हो गया। उन्हें थोड़ा समझदार थी, बोली दीवानी है तू,
हाँ, तो जब मुंह में पानी ली तो जुबान से कुछ अल्फाज ही नहीं निकाल रही, कुछ बदला जवाब में कुछ बोल रही नहीं, तेरा शोहर पागल है कि उन्हें कितनी देर चिल्ला लेगा? गुस्सा आया तो 5 मिनट चिल्लाता, 10 मिनट चिल्लाता, 15 मिनट चिल्लाता। हाँ, सामने से कोई जवाब नहीं मिलता तो उन्हें क्यों चिल्लाएगा बेचारा? सुधर गई बोल के खामोश बैठा, उन्हें झगड़ा खत्म हो गया। अब शोहर के एक बात पर बीवी 2 बातें बोले तो झगड़ा शुरू होता। तुम 2 बोलेगी बोल के 3 बोलते, तुम 3 बोले तो 4 बोलते, 4 जाके 10 होता, 10 के जगह बात आने पे हाथा उड़ते, है ना? हाथा उड़ते, हाथा के बाद लाता उड़ते, सब होता। फिर वहां तक कोर्ट केस कचहरी क्या क्या हो जाते, लोगों के झगड़े वहां तक चले जाते। खाली जुबान को अगर कंट्रोल में रख लो बस पूरे झगड़े खत्म हो जाएंगे, जुबान कंट्रोल में रहे। अक्सर मर्दों की शिकायत ये आती मेरे पास, मेरे को मारने की क्या जरूरत है मेरी बीवी को, मैं क्यों मारूं मेरी बीवी को, मैं मेरी बीवी को क्यों जलील करूं? उन्हें बातें ऐसा बोलती मौलवी साहब बर्दाश्त नहीं होता, बोलता है होता है ऐसा। थोड़ी देर के लिए अगर सब्र कर लेते तो घर सुधर जाता, घर दुनिया में जन्नत का नमूना बन जाता, याद रख लो। तो बहरहाल मैं क्या बोल रहा था, बीवी को गाली न दे और बीवी भी शोहर को गालियां न दे, इस बात को ज़हन में रख ले। अच्छा, उसके बाद क्या है, बहुत सारे लोग बच्चों को भी गालियां देते हैं। अब यहां पर एक मसला ये भी है, दूसरों को, दुश्मनों को गालियां देना तो छोड़ो, अपने बच्चों को गालियां देते हैं, बड़ा खतरनाक मसला है हमारे पास। गालियां देने की आदत होगी, छोटा बच्चा कुछ भी करा तो सीधा उठाए कि तेरे को मौत तो भी नहीं आती, अल्लाह तेरे को मौत तो भी नहीं दे रहा, लान तान कर देते। तेरा नाम फातिहा में तो नहीं आता, कब उठा लेता कि अल्लाह तेरे को, तेरे जैसी औलाद देने से पहले मैं मर जाती तो अच्छा था, दलिंदरा कहां से आ गई की बोलते नहीं, कितनी चीजें हम बोलते। अल्लाह अकबर, ये 2-4 मेरे की याद आया अभी, कितने ही कि बहरहाल गुस्सा करना अलग चीज है, लेकिन गालियां न दे। तो अपने बच्चों को गालियां देना बहुत बड़ी गलती है। एक वाकया याद आया, सुनो। शेख सुदेश को जानते हैं आप लोग? शेख सुदेश कौन है? शेख सुदेश, हाँ माशाल्लाह, मक्का में इमाम, मक्का के इमाम है, उनकी खिरत मशहूर है ना, शेख सुदेश बोल के आप टाइप करो, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन खिरत है। कोई उम्रा और हज के लिए जाते हैं ना, फजर की नमाज माशाल्लाह शेख सुदेश पढ़ाते हैं, जुमा का खुतबा देते हैं। शेख सुदेश इस वक्त के सऊदी के क्या है, मक्का के इमाम है, माशाल्लाह बेहतरीन आवाज है। तो वो शेख सुदेश एक मरतबा खुतबे में कहते हैं क्या कि मैं बचपन में बड़ा शरारती था, मैं इतना ज्यादा शरारती था कि मेरी माँ सालन बनाती, खाना बनाती, खाने में मैं मिट्टी डाल लेके भाग जाता था, इतना ज्यादा शरारती था। लेकिन माँ मेरी कभी गालियां नहीं दी, लेकिन मेरी माँ को जब भी गुस्सा आता था एक बात बोल देती थी, मैं जब ये शरारत करता था मेरी माँ गुस्से में आके बोल देती थी, अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बना दे। गुस्सा आता तो दुआ देती थी मेरे को, गुस्सा आया अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे मक्का का इमाम बना दे। शेख सुदेश कहते हैं कि मक्का, खाने काबा, अल्लाह का घर, उसका इमाम बनना कोई मामूली बात नहीं होती है। मेरे माँ की दुआ थी आज मैं मक्के का इमाम बना। माँ की जुबान से दुआएं निकले बच्चों के लिए, बद्दुआएं ना निकले, बद्दुआएं ना निकले बच्चों के लिए। याद भले कितना ही शरारती क्यों ना हो, उसको डांटो, नहीं सुन रहा तो एक हल्की सी मार मारो, सुधारने की कोशिश करो, गुस्सा करो, कुछ भी करो, लेकिन बद्दुआएं ना दो अपने बच्चों को, बद्दुआएं ना दो। माँ की दुआ बच्चों के लिए बहुत असरअंदाज होती है, दुआएं करो। गुस्सा आए तो यहाँ पर अब एक मसला क्या मालूम हो, हम लोगों को भी अगर हम कोशिश कर लें, जब भी गुस्सा आता है हम जो बोलते हैं ना, वो सत्यानाश हो जाए, मौत आ जाए, फलां हो जाए, फलां हो जाए, उसकी जगह अगर हम लोग अपनी जुबान को तब्दील कर ले, मेरे को जब भी गुस्सा आएगा मैं दुआ दूंगी, दुआ दूंगा, बस ये काम करो, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ये बोलो जब भी गुस्सा आया, अल्लाह तेरी इस्लाह कर दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना दे, ऐसी बातें बोलो, गुस्से से बोलो लेकिन दुआ दे दो, अल्लाह सुन लेता, अल्लाह कबूल कर लेता। बच्चा मक्के का इमाम बन गया। याद रखो मेरी माँ बहनों, तो बहरहाल अपने बच्चों को भी गालियां न दे। अब उसके बाद 9वीं चीज, मरे हुए लोगों को भी गालियां न दे, फौत शुदा लोगों को गालियां देना। कई लोग तो देखो वो कितना भी गुनाहगार क्यों नहीं होता, कितना भी गुनाहगार क्यों नहीं होता, लेकिन मरे हुए आदमी को भी गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने वाले को गाली ना दो, गाली नहीं देना। क्यों? क्योंकि इनके किरदार के मुताबिक अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है ना, अपने गालियों की वजह से उसका क्या फर्क पड़ने वाला है। अगर वो गुनाहगार था, वो दुनिया में जुल्म करके मरा, गुनाह करके मरा, अल्लाह उसको सजा दे देगा। अगर वो अच्छा था तो अल्लाह उसको जजा देगा, जन्नत देगा। तो हम गालियां ना दे, इस बात को जहन में रख ले। इसी तरह 10वीं चीज, माँ बाप को भी गालियां ना दो। माँ बाप को गालियां,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के सामने बोल रहे थे कि ऐ लोगों, माँ बाप को गाली न दो। तो सहाबा हैरान होकर पूछे, अल्लाह के रसूल कौन माँ बाप को गाली देता है? कोई माँ बाप को भी गालियां देता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इससे मालूम क्या हुआ कि सहाबा कोई माँ बाप को गालियां नहीं देते, आज गालियां दे रहे, बल्कि आज माँ बाप को गालियां दे रहे। छोटे बच्चे भी गालियां दे रहे माँ बाप को, जवान होने के बाद इन्हें भी गालियां दे रहा। उसको गाड़ी नहीं दिलाए तो गालियां देता, फोन नहीं दिलाए तो गालियां देता, हाँ, उसकी मर्जी की जो जिंदगी उन्हें गुजारना चाह रहा वो चीज नहीं दिए तो गालियां देता। और उसके अलावा क्या क्या बातें बोलते थे, क्या कमा के रखे हमारे लिए, क्या जमा के रखे तो हम क्या तो भी करे, रहे सो पूरा सत्यानाश कर दिए, भिखारी बना के छोड़े हमारे को, रोड पे ला लिया हमारे को, उनके बाबा देखो कितनी प्रॉपर्टी रखे। क्या क्या गालियां देते हैं आज, मरने की दुआएं करते, बद्दुआएं देते अपने माँ बाप के लिए लोग। ये बदतरीन किस्म के लोग हैं, याद रखो। तो सहाबा के जमाने में कोई माँ बाप को गाली नहीं देता था, इसलिए हैरान होकर पूछे सहाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कोई माँ बाप को भी गालियां देता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, माँ बाप को भी गालियां देता है। कैसे? अगर तुम किसी दूसरे के माँ बाप को गालियां दो तो बदले में वो भी तो तुम्हारे माँ बाप को गालियां देंगे, तो तुम्हारे माँ बाप को गाली देने का सबब तुम खुद बने ना, इसलिए तुम दूसरों के माँ बाप को भी गालियां मत दो। तुम दूसरे के माँ बाप को गालियां दिए तो वो बदले में तुम्हारे माँ बाप को गालियां देंगे, इसलिए माँ बाप को गालियां देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे। अब 11वीं चीज ये है, शैतान को भी गालियां नहीं दे सकते। हाँ, शैतान को गाली देने से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान को भी गाली ना दो, इसकी शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगो। सिलसिला तो सहीहा में यह हदीस मौजूद है। शैतान की शरारतों से तुम दुआ करो, पनाह मांगो अल्लाह ताला से, अल्लाह मुझे शैतान की शर से बचा, लेकिन शैतान को गाली मत दो। क्यों? अगर हम शैतान को गाली देंगे तो शैतान का कोई नुकसान तो नहीं होगा, बल्कि वो खुश होता है। क्यों खुश होता? मुझे गाली देके उन्हें एक गुनाह तो कमा लिया अपने नाम अमल में, इसलिए शैतान खुश हो जाता। तो शैतान को गाली देने का कोई फायदा नहीं है, दुआ करो अल्लाह ताला से, लेकिन गाली मत दो। अब यहां पर एक और आखिरी बात, मतलब गालियां किन किन को नहीं देना, उनमें से 12वीं चीज ये है कि हम गैर मुस्लिमों के बुतों को भी गालियां नहीं दे सकते। हमारा इस्लाम तो ये पैगाम देता है, क्या हम गैर मुस्लिमों के मूर्तियों को भी गालियां नहीं दे सकते हैं? बल्कि आज नहीं मालूम होने की वजह से कितने मुसलमान जहालत में गैर मुस्लिमों के मूर्तियों को, मंदिरों को, उनके भगवानों को गालियां दे देते हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखो। क्यों? अल्लाह ताला मना किया इसके ताल्लुक से। सूरह अनाम आयत नंबर 108 क्या है? अल्लाह ताला फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैरि इल्म। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इसका तर्जुमा ये है, और गाली मत दो इनको जिनकी ये लोग अल्लाह ताला को छोड़कर इबादत करते हैं, क्योंकि फिर वो बुरा जहल हद से गुजर कर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। मतलब तुम गालियां दिए तो बदले में उन्होंने भी गालियां देंगे फिर तुम्हारे रब को, तो तुम्हारे रब को गालियां देने का सबब तुम बन जाते ना फिर, इसलिए गालियां नहीं देना। आज गैर मुस्लिमों के मंदिरों को क्या है, कोई नुकसान पहुंचाना या तोड़ना, ये तमाम चीजें तो दूर की बात, इस्लाम तो उनके मूर्तियों को गाली देने से मना करता है। इस्लाम का पैगाम क्या है असल में? देखिए, इस्लाम तौहीद की दावत देता, एक अल्लाह की तरफ बुलाता, एक अल्लाह की इबादत करो बोलता, लेकिन दूसरे माबूदों का जहां पर इनकार करता है, इनकार करने का मतलब उनकी इबादत मत करो लेकिन उनको गालियां मत दो, शिर्क मत करो लेकिन गालियां मत दो, उनका नुकसान मत करो, ये चीज याद रखो। तो बहरहाल ये 12 चीजें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या है, गालियों के ताल्लुक से ये मना फरमाया। अब इसके नुकसान क्या होते हैं एक एक करके इंशाल्लाह देखेंगे। नुकसान, पहली चीज, गालियों की वजह से लड़ाइयां बढ़ती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस चीज में गाली गलूच होती है वो उस चीज को बदनुमा बना देती है। तिरमिजी की रिवायत है, जाहिर सी बात है, जिस चीज में भी गाली होती है वो चीज बदनुमा हो जाती है। आप एक दुकान को गए, वहां पर दुकानदार से बात करें, छोटी छोटी बात में क्या है, बात बढ़ गई, गाली तुम दे दिए, उन्हें भी गाली दे दिया, वहां पर क्या होता, लड़ाई, झगड़ा, फितना, फसाद हो जाता। रास्ते में चलते चलते एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को लग गई, अगर गाली जुबान से निकल गई तो उन्हें भी पलटा के गाली देता। अगर गाली ना दिए, सबर कर लिए या अच्छे अखलाक से, ठीक है वे कोई बात नहीं। आज हम देखते हैं माशाल्लाह कितने ऐसे लोग होते हैं, एक तरफ बुरे लोग भी है तो दूसरी तरफ अच्छे लोग भी है माशाल्लाह।
समझ रहे। और हर गैर मुस्लिम भी बुरा नहीं होता, इसी तरह हर मुसलमान भी बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे दोनों में भी है। आज मुसलमान अपने अखलाक की वजह से इस्लाम को भी बदनाम कर रहा, इस्लाम को बदनाम कर रहा, खुद बदनाम हुआ वो अलग बात है, लेकिन हमारे दीन को बदनाम करने का सबब आज मुसलमानों के अखलाक बन रहे हैं। और मुसलमान औरतों को भी देखता हूं, मैं बसों में ज्यादा सफर करता हूं तो वहां पर ऐसा हमारा रुबाब होता है औरतों का, ऐसे जाहिल औरतें होती है कि वो गैर मुस्लिम औरतों को बाजू में बिठा लेने से इनकार कर देते हैं। छोटा बच्चा रहे तो कोई आरी औरत बोले तो उठा के उन्हें बाजू में बिठा देती, उन्हें नहीं बैठना मेरे बाजू में बोल के झगड़ा करते हैं। हाँ, हम लिए नहीं टिकट, हम हाफ टिकट दिए, हम पैसे नहीं दिए, कैसा बिठाते। कितने लोगों को झगड़ा करते हुए देखा। तो ऐसे अखलाक ना हो, चाहे औरतों के हो या मर्दों के हो। किसी गैर मुस्लिम से नफरत करना, झगड़ा करना, गालियां देना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। किसी भी इंसान से लड़ाई झगड़ा करना इस्लाम नहीं सिखाता। हालांकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दरगुजर करना, माफ करना सिखाते हैं। तो बहरहाल ये पहली चीज, लड़ाइयां बढ़ती है गालियों की वजह से। दूसरी चीज, ऐसा शख्स मुनाफिक है जो गालियां देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 आदतें जिसके अंदर हो वो पक्का मुनाफिक है। उनमें से एक, जब झगड़ा हुए तो गालियां देने वाला, ये मुनाफिक है। झगड़ा हो सकता है, किसी भी मामले में झगड़ा हो सकता है, ये अलग चीज है, लेकिन लड़ाई हुई तो उसमें गालियां देना ये मुनाफिक की अलामत है। तो गालियां नहीं देना। फिर इसी तरह तीसरी चीज, अल्लाह ताला ऐसे आदमी से नफरत करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालियां देने वाले से अल्लाह ताला नफरत करता है। तिर्मिजी की रिवायत, अल्लाह पसंद नहीं करता, जो गालियां देता अल्लाह उससे पसंद नहीं करता। समझ रहे, तो अल्लाह नफरत करता है। तो ये चीज भी याद रखे। चौथी चीज, बदतरीन आदमी है वो जो गालियां देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक लोगों में से बदतरीन वो है जिनको लोग उसकी बदजुबानी की वजह से छोड़ दे। सही बुखारी की रिवायत। बदतरीन बोले, बदतरीन है वो आदमी जिसके बदजुबानी की वजह से लोग छोड़ दे। पड़ोसी है, उससे मिलना पसंद नहीं है हमारे को। एक रिश्तेदार है, उससे मिलना पसंद नहीं है। क्यों? वो आता भी है तो अरे दूर से सलाम करके चले जाना भाई, उससे नहीं लगना, सलाम भी नहीं करना, बेहतर है कि उससे दूर ही चले जाओ। क्यों? उसकी जुबान गंदी है, वो दिखे तो कुछ ना कुछ बोलता। लोग उससे मिलना छोड़ देते, उससे सोहबत करना पसंद नहीं करते, उसको बात करना पसंद नहीं करते, उसकी जुबान की वजह से। ऐसा आदमी बदतरीन आदमी है बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर इसी तरह पांचवी चीज, नेकियां बर्बाद हो जाती है जो गालियां देता है। सही मुस्लिम की रिवायत, लंबी हदीस है, कई मरतबा सुनाया, कयामत के दिन एक आदमी क्या है, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इंसाफ मांगते हुए आएंगे। उनमें से एक आदमी आएगा, कहेगा अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सामने बोलेगा, ये जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आया, लेकिन उसने दुनिया में मुझे गाली दी थी, ये शिकवा करेगा। अल्लाह ये मुझे गालियां दिया था, हालांकि इसके नामे अमल में नमाज है, रोजा है, दाढ़ी है, टोपी है, हज है, उम्रा है, सब कुछ है, लेकिन इन्हें मुझे गालियां दिया था। अल्लाह इंसाफ दिलाएगा, इसकी नेकियां निकाल के उसके खाते में डाल देगा। तो नेकियां बर्बाद हो जाती है अगर हम दुनिया में गालियां देते हैं तो। किसी को भी, किसी को गाली ना दे, इस बात को याद रखे। फिर इसी तरह छठवीं चीज, जहन्नम में जाएगा ऐसा आदमी। ऐसा आदमी जहन्नमी है जो हमेशा गालियां देता है। सही मुस्लिम में भी और सिलसिला तो सही हमें हदीस मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गालियां देना बदअखलाकी है और बदअखलाकी जहन्नम में ले जाने वाली है। गालियां देना अच्छे अखलाक की निशानी तो नहीं होती ना, गालियां देना बदअखलाकी है और ये बदअखलाकी इंसान को जहन्नम में ले जाती है। तो बहरहाल गालियां देना इंसान को जहन्नम में जाने का बास बनता है। तो कोई किसी को गालियां न दे, चाहे आपस में मियाँ बीवी हो, सास ससुर हो, बहू को हो, भाइयों को हो, बच्चों को हो, गैर मुस्लिमों को हो, जानवरों को हो, किसी को भी, मुलाजिम को हो, किसी को भी गालियां न दे। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आगे होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको इन बुराइयों से, इन बुरी आदतों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।